Hello students, as we know chapter 7 which is database management system has started. In previous video we have discussed about database, application area of database, relational database, tables, part of tables, primary key, foreign key, query and so on. So today in this video I am going to explain further topics of chapter 7. So let's start. And the topic is introduction to MS Access. So what is MS Access? MS Access is a RDBMS, Relational Database Management System. It has many inbuilt features to create, organize and manipulate data. MS Access आपका क्या है? Relational Database Management System है. इसके अंदर बहुत सारे inbuilt features हैं, predefined features हैं, so that you can create, organize and manipulate data. ताकि आप किसी भी डाटा को क्रिएट कर सको, ऑर्गेनाइज कर सको और मैनिपुलेट कर सको. Different types of data objects like table, forms, queries, report, etc. can be created with MS Access. टू ऐड डिलीट अपडेट फाइंड एंड व्यू डाटा. बहुत सारे अलग अलग तरह के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डाटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक टेबल फॉर्म क्वेरी जो कि आप MS एक्सेस के थ्रू क्रिएट कर सकते हो ताकि आप किसी भी तरह के डाटा को ऐड कर सको, डिलीट कर सको और अपडेट कर सको. Each object has a specific use in response to add, delete, modify, update and view the data. हर ऑब्जेक्ट का डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट एज वी नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक टेबल फॉर्म्स क्वेरी रिपोर्ट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट. तो हर ऑब्जेक्ट का अपना एक स्पेसिफिक यूज होता है MS एक्सेस में, जिसके टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई डाटा को ऐड करना, डिलीट करना, इस रिस्पेक्ट में अपना अपना एक अलग स्पेसिफिक यूज होता है. अदर पॉपुलर RDBMS relational database management system are Oracle SQL Server, MySQL DB2, MySQL, Apache Nearby, Amazon Aurora, etc. तो ये सारे एग्जाम्पल ऑफ RDBMS है. एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये अपनी ऐप है लाइक सेम एज MS एक्सेस. MS एक्सेस भी आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. सेम एज MS एक्सेस ये अलग अलग तरह के आपके रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि Oracle हो गया, SQL हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. So now come to the next topic, which is opening MS Access. How can we open MS Access? To open MS Access, you have to click on Start button. Then you have to go to the All Program option and then Microsoft Office Suite and then Access. Let me show you how can you start open MS Access. So first of all, to open MS Access, you have to create on Start button. Here is the Start button. I'm going to click on it. When you click on Start button, Start menu will be appear. You can see Start menu appears here. Now click on the All Program option. When you click on All Program option, again a sub menu appears. Now search Microsoft Office. Here you can see this is the Microsoft Office suite. Click on it and you can see a sub menu of Microsoft Office suite will be appear. And just click on Microsoft Access 2010. Here you can see when you click on Microsoft Access window appears here. Here you can see this is the Microsoft window. Okay. So moving further, Access window appears with a startup screen. To select the type of database that you want to work with, there are various templates of database to choose from. तो एज पर रिटर्न यहाँ पे जैसा लिखा हो उसके हिसाब से जब आप MS एक्सेस विंडो को ओपन करोगे तो ये एक एक्सेस विंडो आपका अपियर होता है विद स्टार्टअप स्क्रीन. दिस इज द स्टार्टअप स्क्रीन ऑफ MS एक्सेस विंडो. So to create a new file, you have to click on to create a new database. You have to click on यहाँ पे आप देखोगे कि MS Access का different templates आपको डिस्प्ले हो रहा है लाइक ब्लैंक डेटाबेस, ब्लैंक वेब डेटाबेस, डिफरेंट टेम्पलेट, अलग अलग टाइप के टेम्पलेट डिस्प्ले हो रहे हैं. दे आर वेरियस टेम्पलेट ऑफ डेटाबेस टू चूज. आपको अलग अलग तरह के डेटाबेस जो आप चूज कर सकते हो. So here we are going to create a new blank database. So we are going to create a new blank database. अब फर्दर हम लोग एक नया blank database create करना जा रहे हैं. So we have to click on blank database, desktop database. Here you can see blank desktop database. So you have to click on blank database option. A pop-up window appears. Give a name for a file name. फाइल आपका ये देखो pop-up menu appear हो गया. Here you can see when you click on blank database option, this is the pop-up menu जो आपके सामने appear हो गया. Now you have to provide the file name. आपको यहाँ पे file name provide करना. Give a name for your file in the file name box. आपको you have to assign a file name for your file. आपको अपने फाइल के लिए फाइल नेम प्रोवाइड करना होगा. माई प्रोजेक्ट लाइक कोई भी फाइल नेम आप दे सकते हो. ओके, आफ्टर प्रोवाइडिंग द फाइल नेम जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट ऑप्शन. हियर यू कैन सी दिस इज द क्रिएट ऑप्शन. क्लिक ऑन क्रिएट ऑप्शन एंड योर फाइल विल बी क्रिएटेड. आपका फाइल क्रिएट हो चुका है. यू कैन सी माई प्रोजेक्ट टाइटल नेम, माई प्रोजेक्ट, आपका ये फाइल क्रिएट हो चुका है. सो I hope you can understand how can you create a new file project on MS Access. The new database is created with a given database name. The extension of database
database database file is an in MS Access is .accdb। आप देख सकते हो कि जो भी फाइल नेम आप दिए थे अपने डेटाबेस के लिए वो आपके टाइटल नेम पे यहाँ पे आप डिस्प्ले हो रहा है माई प्रोजेक्ट। ओके, और इस फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होगा, जो सेकेंडरी नेम होगा, वो होगा .accdb। ये आपका 2007 या हायर वर्जन के लिए ये एक्सटेंशन नेम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ओल्डर वर्जन विच मीन 2007 से पहले वाले वर्जन के लिए आपका जो एक्सटेंशन नेम होगा वो .mdv होगा। हेयर कैन सी ओल्डर वर्जन आर .mdv फाइल्स। ओके, so now moving further, so creating table in design view. So how can we create table in the MS section with the help of design view? Table can be created using table wizard, table data view or table design view. In MS Access you can create table in 3 different views, which is table wizard, table data view और table design view। इन 3 तरीके से आप table design कर सकते हो। Table design view gives complete control to the user in designing in the structure of the table by specifying the file name. So with the help of table design view, when a user creates a table by using table design view, it gives a complete control to the user। अगर आप टेबल डिजाइन व्यू के हेल्प से टेबल क्रिएट करते हैं सक्सेस के, तो पूरा कंट्रोल यूजर के हाथ में होता है, इसमें आपके हाथ में होता है। सो दैट यू कैन डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। आप टेबल का स्ट्रक्चर डिजाइन कर सको अपने अकॉर्डिंगली और फाइल नेम स्पेसिफाई कर सको अपने अकॉर्डिंगली, डेटा टाइप एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच कॉलम। मतलब टेबल में जो भी आप फाइल फील्ड नेम प्रोवाइड करना चाहते हो, डेटा टाइप प्रोवाइड करना चाहते हो, प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना चाहते हो हर कॉलम का, वो सारा कुछ आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो बाय यूजिंग टेबल डिजाइन व्यू। ओके, द स्टेप्स टू क्रिएट a table using design view are, so if you want to create a table by using table design view, you have to follow some steps। okay, so here are the some steps। first of all you have to click on create tab। so first of all you have to click on create tab। here you can see file tab, home and then create tab। so to create a table by using design view, you have to first of all you have to click on create tab। आफ्टर क्लिकिंग टेबल क्रिएशन विंडो अपीयर्स। आप देख सकते हो टेबल क्रिएशन विंडो आपका अपीयर हो गया है। टाइप द कॉलम नेम अंडर द फील्ड नेम सेक्शन। आप देख सकते हो क्रिएट क्लिक ऑन क्रिएट टैब, हियर कैन सी आपके रिवन में अपीयर हो गया टेबल ऑप्शन। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन टेबल डिजाइन व्यू। जस्ट क्लिक ऑन टेबल डिजाइन व्यू। when you click on table design view, you have the table creation window have appears here। you can see this is the table creation window आपके सामने ये appear हो चुका है। type the column name here, you can see this is the field name। you have to type in column name in under field name के अंदर आपको column name provide करना है। whatever you want, आप जो भी column name provide करना चाहते हो आप दे सकते हो। here you can see some field name। here you can see यहाँ पे कुछ फील्ड मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। नाउ आफ्टर प्रोवाइडिंग फील्ड नेम, सेट अ सुटेबल डाटा टाइप फॉर द फील्ड नेम इन डेटा टाइप सेक्शन। आफ्टर प्रोवाइडिंग फील्ड नेम यू हैव टू सेट अ सुटेबल डाटा टाइप। आपको डाटा टाइप सेट करना होगा। जस्ट लाइक एडमिशन नंबर के डाटा टाइप आपका होना चाहिए नंबर, क्योंकि आपका एडमिशन नंबर एक नंबर है तो आपको नंबर यूज़ करना है। स्टूडेंट नेम आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म होगा तो आपका टेक्स्ट एडिटी रहने देना है। एंड देन मार्क्स ऑप्शन भी आपका नंबर होगा तो आपको नंबर यूज़ करना है। सो आफ्टर सेटिंग द डाटा टाइप यू हैव टू मूव फर्दर। here you can see some information about data type। आपके डाटा टाइप के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। द डाटा टाइप डिस्क्राइब द टाइप ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन द कॉलम। डाटा टाइप क्या डिस्क्राइब करता है कि किस तरह का वैल्यू आप स्टोर करने वाले हो कॉलम में। सम ऑफ द कॉमन डाटा टाइप आर एक्सप्लेन बिलो। शॉर्ट एंड लॉन्ग टेक्स्ट, इट स्टोर द टेक्स्ट विच माइट बी एन अल्फाबेट, ए नंबर और बोथ। इफ यू चूज टेक्स्ट डाटा टाइप, इसका मतलब ये होगा कि इस कॉलम में आपका कुछ भी सेव हो सकता है, लाइक अल्फ़ाबेटिकल नंबर लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी आप सेव कर सकते हो। द नेक्स्ट डेटा टाइप इज नंबर स्टोर द नंबर दैट कैन बी यूज फॉर कैलकुलेशन। नंबर डेटा टाइप आप नंबर्स को स्टोर कर सकते हो ताकि आप उसको कैलकुलेशन के लिए यूज कर सको। ऑटो नंबर, इट स्टोर द ऑटो जनरेटेड नंबर एंड ऑटोमेटिकली इंक्रीज द वैल्यू। ऑटो नंबर, इफ यू से डेटा टाइप से ऑटो नंबर, इसमें क्या होगा, ये ऑटो जनरेटेड नंबर को स्टोर करेगा और ऑटोमेटिकली जो भी वैल्यू इंक्रीज होगा वो उसको स्टोर करता जाएगा। नेक्स्ट वन इज डेट एंड टाइम डाटा टाइप। इट स्टोर द डेट एंड टाइम वैल्यू इन डिफरेंट फॉर्मेट। डेट एंड टाइम डेटा टाइप में क्या होगा कि आप डेट और टाइम को आप स्टोर कर सकते हो इन डिफरेंट फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्मेट में। नेक्स्ट वन इज करेंसी। इट स्पेसिफाई द करेंसी एंड डिस्प्ले देम इन डिफरेंट फॉर्मेट।
करेंसी डेटा टाइप में आपका करेंसी को स्पेसिफाई कर सकते हो, आप स्टोर कर सकते हो इन डिफरेंट फॉर्मेट, अलग अलग फॉर्मेट में. एंड द नेक्स्ट डेटा टाइप इज यस एंड नो. इट स्टोर ओनली दोज वैल्यू विच हैव ट्रू आंसर, ट्रू और फॉल्स. यस एंड नो डेटा टाइप में आप वैसे डेटा टाइप, आप वैसे वैल्यू को स्टोर कर सकते हो जिसमें सिर्फ दो ही आंसर होते हैं, लाइक ट्रू और फॉल्स. एंड नेक्स्ट वन इज OLE ऑब्जेक्ट. इट स्टोर द डाटा फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर लाइक वर्ड, एक्सेल एक्सेट्रा. तो OLE ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में आप दूसरे एप्लीकेशन लाइक वर्ड, एक्सेल, दूसरे एप्लीकेशन के डेटा को आप स्टोर कर सकते हो. So moving further, after assigning field name and after setting the data type, you have to move to the further data type, which is you can also give the description of the field in description section. It helps a new helps a new user of the table to understand the aim of the field. So after defining the field name, after assigning the field name and set the data type, if you want to give the description about field, आप field के बारे में कोई description देना चाहते हो तो you can give है, आप यहाँ पे दे सकते हो. ओके. So after all these things, आपको सारा कुछ करने के बाद you have to click on save button. Here you can see this is the save button. You have to click on save button on the quick launch toolbar. Here you can see this is the quick launch toolbar. After providing all these things, you have to click on save button to save this file, or you can also click on file button. If you want to save file, you have to click on file button and then choose save option. When you choose to save option, save as dialog box appears. Provide the name of table. आपको टेबल का एक नाम प्रोवाइड करना है. After providing the table name of table, then click OK button and your table will be created. Click on OK button. But did you see a warning message appears? Here you can see a warning message appears हो गया आपके सामने. A warning message appears on your desktop screen. आपके सामने desktop screen warning message appear होता है. सो इसमें क्या वार्निंग मैसेज अपीयर होगा, इसमें आपको प्राइमरी की सेट करने के लिए एक मैसेज अपीयर हो रहा है. इफ़ यू डोंट वांट टू क्रिएट ए प्राइमरी की, क्लिक ऑन नो बटन. इफ यू डोंट वांट टू, आपको प्राइमरी क्रिएट करने का मन नहीं है तो आप इग्नोर इट, आपको इग्नोर करना चाहिए. इफ यू वांट टू क्रिएट ए प्राइमरी की, क्लिक ऑन यस बटन और ओके बटन. इफ यू वांट टू क्रिएट ए प्राइमरी की, जस्ट क्लिक ऑन ओके बटन. आप प्राइमरी की क्रिएट करना चाहते हो तो आप ओके बटन पर क्लिक करो, आपका प्राइमरी की ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा. सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ओके बटन एंड यू कैन सी Here you can see यहाँ पे एक मैसेज आता है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, although primary key isn't required, it is highly recommended. A table must have a primary key for you to define a relationship between this table and the table in the database. Do you want to primary key now? ये आपसे पूछा है, if you want to create a primary key now, आप अभी create करना चाहते हो. If you don't want to create primary key, just click on no button. आप no button पे click करो, primary key नहीं create होगा. But if you want to create a primary key, या primary key create करना चाहते हो, so just click on yes button. एंड हेयर कैन सी प्राइमरी की इस क्रिएटेड. ये दिस इज द प्राइम, आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइमरी की का आइकन डिस्प्ले हो रहा है. यहाँ पे आपका की का आइकन डिस्प्ले हो रहा है. तो ये आपका प्राइमरी की डिफाइन हो रहा है. ओके. So student, that's all for today. I hope you have understand all those topics which I have discussed today. Remaining topics of chapter 7 will be discussed in next video. Thank you.